आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, किसी कंपनी के सीईओ हैं या अपना करियर सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं, नो मैटर व्हाट, देयर इज वन थिंग दैट वी all need if at all we are going and applying for jobs in the market. That is CV, our resume, a blueprint of our journey that describes us and helps a recruiter understand our candidature, which leads to shortlisting and interview invitations. Hi, I am Khoj. वेलकम टू माई चैनल। अगर आपको ये वीडियो मिली है तो आई एम श्योर आप जॉब सर्च पे हैं और यू आर somebody who's starting with your career or you need some or the other sort of help that leads to job findings related to markets, related to current affairs, how to crack any interview, how to make a perfect CV or any such type of thing. If you found my video for those reasons, then this is the right channel and right platform for you, because आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं a picture perfect CV which will help you land your dream job. So stay with me till the end. Before I start ahead with my video, मुझे मेरे Instagram पे alongside comment section में बहुत सारे comments आ रहे थे, messages आ रहे थे that you guys want my help in making picture perfect CV. I know it's little difficult that when you are starting and you don't know, आपके पास direction नहीं होती है. So मैंने अपने years के experience के साथ and with all my research, I have come up with this video. Before I start, I want to give you a quick information. मैं इस वीडियो को टाइम स्टैम्प्स में डाल दूंगी ताकि आप उस चीज के अकॉर्डिंग उस वीडियो को देख पाए if you are looking for something particular. But if you want to watch the entire video, that's completely up to you. Segments में divide इसलिए करूंगी because there is going to be a lot of information and very much useful information. Segment बता देती हूँ कैसा रहेगा. How to build your CV from the scratch. कहाँ से templates ढूंढे, क्या करें, क्या mistakes avoid करें, क्या क्या information CV पर होनी चाहिए, and everything I will be covering. In the end, I will be giving you some pro tips which no one will tell you, and in the last I have something interesting. You may consider it as a bonus or some special offer or whatever you want to tell it, but I have something really interesting to break to all of you. So without wasting any more time, let's deep dive into it. सबसे पहले CV बनाना कैसे है, मैं आपको दो टेक्निक्स दूंगी इस चीज के अंदर. सबसे पहली चीज, आप या तो गूगल डॉक्स ओपन कर सकते हैं या MS वर्ड, और थर्ड कैनवा. इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पर आपको फ्री सैंपल टेम्पलेट्स मिल जाएंगी. गूगल डॉक्स पे भी आपको रेज्यूमे का, अगर आप वहाँ पे सर्च करेंगे साइड में, आपको रेज्यूमे की टेम्पलेट मिल जाएगी. अगर आप MS वर्ड पे क्लिक करेंगे, वहाँ पर भी आपको फ्री सैंपल रेज्यूमे टेम्पलेट मिल जाएगी. और कैनवा पे तो डेफिनेटली आपको thousands ऑफ टेम्पलेट्स मिल जाएंगी. नाउ इफ यू डोंट नो which template to pick, you don't need to worry, I have got your back. मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ सैम्पल टेम्पलेट्स के लिंक डाल दूंगी सो दैट आपको इतनी ज़्यादा रिसर्च ना करनी पड़े एंड आप उसमें से कोई भी टेम्पलेट पिक कर सकते हैं. अ क्विक एडवाइस फॉर ऑल ऑफ यू, बहुत सारे लोग ये वीडियो को देखेंगे तो ऐसा ना हो कि वो जो 4-5 टेम्पलेट्स मैं दूंगी आप सब उन्हीं को उठा करके CV बनाना स्टार्ट कर दो, वरना सभी के CV सिमिलर हो जाएंगे. यू कैन चेक विच एवर यू लाइक एंड देन अकॉर्डिंगली प्रोसीड. नाउ CV होना कैसा चाहिए, आई एम श्योर मेरे टेम्पलेट्स जो आपको मैं दूंगी उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसा होना चाहिए, बट फॉर दिस वीडियो आई एम गिविंग यू दैट इन्फॉर्मेशन. योर CV शुड बी simple, professional and appealing. That's it. Don't make it chamkila dhamkila with bhadkila colors. No. Keep it simple, neat and clean. And even if you choose to make it with color combinations, please pick subtle colors. Like you can pick combinations of blues, you can pick combinations of grays, combinations of light pinks. So basically, आप CV का आइडिया ये होता है कि आपका फुटप्रिंट CV देख सके, रिक्रूटर देख सके, आपका CV कितना स्टाइलिश है, उसमें कितनी आपने पिक्चर्स डाली हैं, कितनी सारी चमकीली ढमकीली चीज़ें डाली हैं, वो मैटर नहीं करता. वो कोई आपका 6th ग्रेड का स्कूल प्रोजेक्ट नहीं है, वो आपका एक प्रोफेशनल ब्लूप्रिंट है. सो प्लीज अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ इट इन द थॉट कि मेरा CV सबसे ज़्यादा चमकेगा
भड़कीले कलर्स के साथ होगा तो रिक्रूटर उसे सिलेक्ट कर देगा। नो माय फ्रेंड, यू आर वेरी रॉन्ग। वो सीवी लोग देखना भी पसंद नहीं करते बिकॉज देयर इज समथिंग दैट इज इंस्टॉल्ड इन HR's mind and we want neat and clean and a professional CV. Now, going to the first part. The first structure of your CV is your name. Your name should be bold. Now, I don't mean कि आप उसे bold, font में करें. What I mean to say is कि आपका नाम जो है वो आपके CV पर सबसे ज़्यादा highlight होना चाहिए. Even if whether we tend to open your CV or not. जब आप अपना CV भेजते हैं तो जिस फॉर्म में आप अपने CV को भेजते हैं उसका एक प्रीव्यू हमें दिखता है, तो आपका नाम वहां पर बहुत अच्छे से विजिबल होना चाहिए सो दैट वी आर एबल टू चेक दैट। छोटा नाम नहीं होना चाहिए, बड़े बड़े अक्षरों में आपका नाम होना चाहिए वहां पे। नाउ द सेकंड इन्फॉर्मेशन, योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स को बहुत नीट एंड क्लीन रखो। द ओनली 3 things that is actually required in your contact information is your number, your email address and your address. Now by address what I mean is your physical location, not your complete address. सारी चीजें डिजिटलाइज हो गई हैं आजकल। आप वर्ल्ड के किसी भी कोने से बैठ करके मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। आजकल लोग रिमोट जॉब्स ढूंढ रहे हैं। इन दैट एरा इफ यू आर थिंकिंग कि आप फिजिकल एड्रेस डालेंगे, इट्स गोइंग टू सर्व नो पर्पस। अगर रिक्रूटर को चाहिए होगा, आपको कोई चिट्ठी भेजनी होगी या संदेशा भेजना होगा, तो वो आपसे आपका एड्रेस मांग लेंगे। तो प्लीज एड्रेस कंप्लीट मेंशन ना करें। इट्स जस्ट ओवर इंफॉर्मेशन, वी डोंट नीड इट। मेंशन योर लोकेशन in terms of, for example, if you are from Delhi, so mention which part of Delhi you are from. You may mention that you are from Dwarka, you are from Connaught Place, you are from Vasundhara, then / Delhi NCR or New Delhi. That's it. That is the only information a recruiter needs. If you are from some other state, follow the same structure. Where you stay, then your location, and then your state. So, for example, if you are from Lonavala, so Lonavala, Mumbai, Maharashtra, like that. Or I'm not sure about a lot of places from Mumbai, but I'm just giving you a heads up. So, for example, if you're from Bangalore, you can mention Koramangala, Bangalore, Karnataka. That is it. Now, the second important information, your email address. I want to share a quick glimpse of something that happened a long time back. We were in a process of shortlisting some candidates, fresher candidates for a job role. And उसमें से जो कुछ CV select हुए थे, we were मैं पूरी टीम के साथ थी and we were about to roll out the invitations for interviews and अब सबको email पे हम डाल रहे थे and we were checking for the emails। तो एक CV आता है और उस पे email था chocopie with the name @gmail.com। Trust me, the minute I read it, I froze for a second. Then I told to the other person. They started laughing. We all started laughing. Please do not make these mistakes. Do not mention any such टाइप ऑफ ईमेल एड्रेसेस। अगर आपके पास प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस नहीं है तो बना लीजिए, बट प्लीज अपने पुराने ओल्ड स्कूल टीनेज वाले जो ईमेल एड्रेसेस हैं वो अपने सीवी पर मेंशन ना करें, बिकॉज इट्स नॉट एट ऑल प्रोफेशनल। यू कैन कीप इट विद नंबर्स, नॉट अ प्रॉब्लम। यू कैन मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर फर्स्ट नेम, योर लास्ट नेम, maybe first name dot last name @gmail.com or any other domain, not a problem, but keep it professional, not like chocopie or bad boy, bad girl. No, it's not allowed. Trust me, it's not allowed. It doesn't look professional at all. Now, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, प्लीज अपने ईमेल और अपने कॉन्टैक्ट नंबर को आंखें खोल खोल के चेक करना, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज योर ओनली पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इवन इफ वी लाइक योर CV, इवन इफ वी लाइक योर कैंडिडेचर, ये दोनों चीजें अगर गलत हैं, वी विल नॉट बी एबल टू रीच आउट टू यू। सो प्लीज अवॉइड दिस एंड रीचेक, क्रॉस चेक, डबल चेक, do whatever it takes, but ये information बिल्कुल correct रखना। Now, the second part about the summary of your CV. Now, this is something where all of us do the mistake. मैंने भी ये mistake किया है। अपनी CV की समरी को सबसे पहले लिख देना। समरी का मतलब क्या होता है? आपकी जितनी भी चीज आप बोलने वाले हो या जो भी चीज आप एक्सप्लेन करने वाले हो, जो भी स्टोरी आपने लिखी है, उसका सार, दैट इज उसकी समरी, करेक्ट? आप बहुत ही क्रिस्प और छोटे शब्दों में एक बड़ी स्टोरी को बताना चाहते हैं, उसको समरी कहते हैं। आपने जब अपनी पूरी चीज को एक्सप्लेन ही नहीं किया है, तो बिना एक्सप्लेन करे आप किसी चीज का सार कैसे लिख सकते हैं? आप समरी कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? करेक्ट? सो दिस इज समथिंग, keep it in that bracket, but we will discuss it in the end, that how to craft a perfect summary for yourself. Now, the third thing, if you are an experienced candidate and even if you are a fresher candidate, don't be worried, मैं दोनों के लिए वीडियो कवर कर रही हूँ। I'm just starting from an experienced candidate. अगर आप एक experienced candidate हैं, तो आप अपनी सारी की सारी कंपनीज, जो भी कंपनीज आप उससे मेंशन करना चाहते हैं, there are people who skip some of their companies and
हटा देते हैं वो उन कंपनी में काम करने, कुछ कंपनीज में काम करने वाला एक्सपीरियंस, दे डोंट वांट टू शो दैट, दैट्स pretty much okay, that's very much okay, not a problem. But the thing that you need to remember is आप उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, मीनिंग आप जिस करंट कंपनी में काम कर रहे हैं उसको आप सबसे टॉप पर लिखेंगे, और उसके बाद आपने उससे पहले जिस कंपनी में काम किया था उसके बारे में लिखेंगे, एंड द साइकिल कंटिन्यूज। आप सबसे पहली कंपनी जो आपने ज्वाइन की थी उसको सबसे टॉप पर नहीं लिखेंगे, आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको लिखेंगे, जिस कंपनी में आप अभी काम कर रहे हैं उससे, देन गोइंग डाउन टू योर फर्स्ट कंपनी। अब इसके अंदर आप क्या लिखेंगे जिससे आपका सीवी स्टैंड आउट करे? नाउ थिंक लॉजिकली। आप अगर एक एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं जिसने बहुत ही नामी गिनामी कंपनीज में काम किया है, for example, you have been working with TCS, you have been working with Accenture or maybe Amazon, Microsoft, ये सभी बहुत ही renowned कंपनीज हैं जिनको परिचय की जरूरत नहीं है, बट आपने किसी ऐसी कंपनी में काम किया है जिसके बारे में शायद मुझे नॉलेज ना हो। ऐसा हो सकता है कि वो बहुत अच्छी कंपनी हो, बट इट इज नॉट एज रिनाउंड, एज प्रेस्टिजियस एज द ब्रांड नेम्स आई गिव यू, राइट? इस केस के अंदर आप अपनी कंपनी का नाम मेंशन करने के बाद एक वन लाइनर उसी के डिस्क्रिप्शन के जस्ट नीचे लिख देंगे, ठीक है? उससे क्या होगा, इफ आई एम द पर्सन एनालाइजिंग योर सीवी, आई विल गेट टू नो कि ओ ये कंपनी ये है और इसने अभी भी ऐसा किया है। जस्ट टू गिव यू अ क्विक हेड्स अप, आप लिख सकते हैं दैट गॉट फंडेड इन द ईयर 2024 बाय Amazon। तो आपने क्या दिखाया कि आप एक ऐसी कंपनी में, आप एक XYZ कंपनी में काम कर रहे हैं जिसको 2024 में Amazon ने फंड किया था। तो मुझे शायद आपकी कंपनी का नाम ना पता हो या मुझे ये ना पता हो कि आपकी कंपनी क्या करती है, लेकिन मुझे ये पता चल गया कि Amazon जैसी कंपनी ने इस कंपनी को 2024 में फंड किया था। तो मुझे पता चल गया कि ओ मतलब कि ये बंदा अच्छी कंपनी में काम करता है, इवन वेदर आई नो द नेम ऑफ द कंपनी और नॉट। नाउ अगर आप किसी स्टार्टअप में काम कर रहे हैं तो आप स्टार्टअप के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं इन वन लाइनर। वंस अगेन इट डजंट हैव टू बी डिस्क्रिप्टिव, वन लाइनर में बता सकते हैं दैट द कंपनी इज अवॉर्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। अगर फाइनेंस की कंपनी है, अगर IT फर्म है तो IT कंपनी फाउंडेड इन द ईयर दिस इज फोकसिंग टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर थिंग्स। तो आपने बहुत ही छोटे से क्रिस्प मैनर में बता दिया कि कंपनी इस ईयर में फाउंड हुई थी, कंपनी ये करती है और कंपनी इन चीजों में डील करती है। इट जस्ट टेक्स अ वन लाइनर, ट्रस्ट मी। इससे आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और रिक्रूटर को पता चलेगा कि आप कितनी अच्छी कंपनी में काम करते हैं। थर्ड थिंग जो इसी सेगमेंट में आनी चाहिए इज द डे or the month you have joined the company till present. So for example, if you have joined the organization in the year 2023, for say in the month of May, so May 2023 to present, you don't have to specify the dates in the CV. I do not prefer it, but इसका कोई hard and fast rule नहीं है। अगर आप date mention करना चाहे आप कर सकते हैं कि मैंने 15 अप्रैल को कोई कंपनी ज्वाइन करी है, 15 अप्रैल 2023 में से अभी तक till present और till date, not a problem. It is just that कि अगर आप month mention करेंगे तो वो थोड़ा सा नीट लगता है। There is no other reason that I'm telling you that. Okay? अब हम आते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन पर, या आप जब हम लिखते हैं कि हमने इस कंपनी में क्या किया है। दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट पे अटेंशन एंड लिसन दिस थिंग टिल आई कवर दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। मैंने बहुत सारे सीवीज एनालाइज किए हैं एंड मैंने ये पर्सनली नोटिस किया है कि लोग जॉब प्रोफाइल और जॉब रोल एंड जॉब अचीवमेंट के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। दे हैव मेड अ कंप्लीटली सेपरेट कॉलम फॉर देयर अचीवमेंट। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप एक XYZ कंपनी में काम करते हैं और आप कस्टमर सर्विस एसोसिएट की पोजीशन पर हैं। फेयर इनफ। अब कस्टमर सर्विस के अंदर बहुत बड़ा जॉब डिस्क्रिप्शन है, हैंडल द कॉल्स, एवरीथिंग। Now, I have seen people mentioning responsible for handling customers over the call, responsible for providing best customer service or excellent customer service, tasked to handle 150 calls per day। ठीक है, जनरली लोग ऐसा लिखते हैं और आई थिंक अगर आप भी इस डोमेन से हैं तो आप भी लिखते हो, ठीक है। बट हियर is something it's going to turn the table for you like anything, that is awarded for providing excellent customer service for the quarter so and so। Giving you another example, if you are from sales, generally लोग क्या लिखते हैं, responsible for driving sales over the call, responsible for achieving monthly target। But if you mention the same thing, awarded for the best sales representative for the year 2024 or 2025, delivered 10% sales growth on quarterly basis,
helped organization maximize the profit, contributing to overall growth for the branch, for the company, or for my team with 12% increment. Now, with both of these examples, what are you able to understand? आपने सेम जॉब डिस्क्रिप्शन बताया है कि आपने सेल की या आपने कस्टमर सर्विस की, आपने एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करी और मतलब और भी चीजें जो कि आप उस जॉब रोल में करते हैं, बट इन अ डिफरेंट वे आपने ये बताया कि आपने उस जॉब रोल में जाकर के ऐसा क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया जिससे कंपनी को बेनिफिट हुआ या जिससे आपको बेनिफिट हुआ। आपने ऐसा डिफरेंट क्या किया, विच इज योर अचीवमेंट इन इटसेल्फ। तो आपको अचीवमेंट का सेक्शन डिफरेंट नहीं बनाना चाहिए, आपको सेम बनाना चाहिए। उसके अंदर उससे कम, क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में मुझे पता है। आई नो व्हाट अ कस्टमर सर्विस एजेंट डू। इफ यू टेल मी दैट यू आर इनटू सेल्स, आई नो व्हाट अ सेल्स एग्जीक्यूटिव डू। इफ यू टेल मी यू आर फ्रॉम कस्टमर सर्विस, आई नो व्हाट अ कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव डू। इफ यू आर फ्रॉम chat process or if you are from some other processes, operations, management, banking, finance, I know आपका job role क्या है। तो मुझे job role नहीं पढ़ना, क्योंकि job role तो मैंने ही अपनी कंपनी के लिए डाला है। मैं ही बता रही हूँ कि you will be tasked to do all of these things. What I want to know is that with this job role, what was the impact you brought into the table? What is the how you are a resourceful candidate? That's where it makes a difference. So rather than making two separate columns, one where you are putting the entire job description, second for your achievements, collaborate it. थोड़ी सी मेहनत का काम है, but हो जाएगा। इस प्रैक्टिस को फॉलो करने से ट्रस्ट मी, आप अपना 60% काम वहीं पर फिनिश कर देते। यू डू नॉट हैव टू गो ओवर अगेन टू द रिक्रूटर बाय एक्सप्लेनिंग कि आपने क्या 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 किया है, क्योंकि रिक्रूटर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके अचीवमेंट सेक्शन को सेपरेटली जाके पढ़ेगा। लेकिन अगर आप अपने अचीवमेंट्स को अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ कोलैबोरेट कर देंगे तो आपका 60% काम डन हो जाएगा। नाउ द रिक्रूटर इज नॉट गोइंग टू क्रॉस क्वेश्चन यू or come to you saying कि what did you do differently for this role or what impact did you do, did you contributed towards the company। आपके वहां जाने से कंपनी को क्या बेनिफिट हुआ, नहीं, वो आपके सीवी पर लिखा है। Now the recruiter is going to ask you a question that is a step ahead, that what plans do you have for this role, how do you think will you handle this role, will you be able to deliver the similar kind of numbers that you delivered in your previous company। Now आप समझ रहे हो, आपने अपने most of the जो basic questions होते हैं उनको dodge कर दिया। The recruiter is not going to ask you that what makes you a better candidate than others or why should I hire you। आपने ये the room for a recruiter to ask you these questions in itself close कर दिया। और अब recruiter आपसे ये basic questions नहीं पूछेगा। recruiter आपसे पूछेगा what is your next plan of action going forward। आप मेरी कंपनी में मुझे कैसे बेनिफिट करोगे, क्योंकि आपने प्रीवियस कंपनी में इतना अच्छा काम किया है, तो अब आप मेरे लिए क्या अच्छा करने वाले हो। That is where you are standing out among all the candidates who will be coming for the interview for that particular role। ठीक है, अब हम जानते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, that is your education segment। Same strategy we will be following। आप chronological order में अपनी education लिखेंगे, आपकी most recent education, because that is going to be your advanced education, correct। Either you have recently, because आपकी जो सबसे एडवांस्ड एजुकेशन होगी वो आपने रिसेंटली फिनिश की होगी, सो आइदर इट इज योर मास्टर्स और योर ग्रेजुएशन डिग्री और इवन इफ यू आर जस्ट अ 12th पास। आप सबसे हाईएस्ट डिग्री को सबसे पहले लिखेंगे, कौन से ईयर में उसको फिनिश किया या किस फील्ड में आपने उस चीज को पढ़ा है, वो अगर आप लिखते हैं उससे आपके सीवी पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। If you just mention that MBA from so and so university, not helpful. Mention you have done your MBA in this particular field from this particular college, and you can mention your dates that which year you would pass out. That will give the recruiter the understanding कि अच्छा आपने अपनी MBA कितने टाइम में complete कर ली थी, whether it was distance learning or what. A little bit just about it, just a one liner. It's really going to bring a drastic change to your CV. Same thing if you are a graduate person. Mention graduate from this particular university with these field, like I have done my graduation in this particular field, same with the year, same goes for the 12th, same goes for your 10th grade degree, and whatever degrees you want to mention on your CV, highlight the ones which are going to be beneficial for you now, so make it in the chronological order once again। next thing is your skill set। अब skill set के अंदर आप बहुत ही basic चीजें नहीं लिखेंगे that you are a team player or you are you are very good with organizational skills and all।
वी डोंट नीड दैट, वी नीड द स्किल्स दैट यू हैव अक्वायर्ड। क्योंकि टीम प्लेयर जैसे वर्ड्स या बाकी सारी चीजें, टीम ओरिएंटेड चीजें आप अपने सीवी पर बहुत अच्छे से मेंशन कर सकते हैं विद इन द जॉब डिस्क्रिप्शन और द वर्क दैट यू हैव डन इन पास्ट, विद द कोलैबोरेशन ऑफ योर अचीवमेंट्स, योर जॉब डिस्क्रिप्शन, with what skills you have acquired over there. तो skills में आप ये मत लिखिए that you are a team player or you are very organizational person or you are very punctual, you are very patient. These are not skills. This is behavior. This is soul behavior. आप किस टाइप के इंसान हैं ये वो दिखाता है। अगर आप पेशेंट इंसान है that's your behavior. अगर आप टीम प्लेयर है that shows that what type of person you are. You get along with people easily. That's not a skill. तो स्किल में आप सिर्फ अपनी स्किल्स मेंशन करेंगे, लाइक यू हैव डन एडवांस्ड एक्सेल or you have taken any freelancing course or you have done anything else. You may have completed an online course from in digital marketing or maybe in operations, maybe in inventory management, in banking, AI, AML, KYC or whatever. जिस भी चीज में आपने कुछ सर्टिफिकेशन, कुछ एनहांसमेंट किया है वो चीज आप उसमें मेंशन करेंगे। इससे बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। एग्जाम्पल, एज अ रिक्रूटर व्हेन आई सी that you have mentioned that you have completed a course, you are advanced, advanced Excel, or maybe you have opted for an online course that deals in AI or machine learning or data analysis. इससे मुझे ये पता चलता है कि इस बंदे की जो एजुकेशन है वो इसने इस फील्ड में करी है और इसने एक एडिशनल स्किल सेट अक्वायर किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, which makes me understand other than his education or her education, this person is very much open to learn things. This person makes time to keep upskilling themselves, which is something a company, a recruiter is looking for. A person who is constantly learning. Make sense? अब आ जाते हैं फ्रेशर कैंडिडेट्स के ऊपर। सो डोंट वरी, आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू एज वेल। आप एक फ्रेशर कैंडिडेट, आप अपना नेम का स्ट्रक्चर, एड्रेस का स्ट्रक्चर, बाकी एजुकेशन का स्ट्रक्चर, स्किल सेट का स्ट्रक्चर सब सेम रखेंगे। जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव एक्सपीरियंस दैट डजंट मीन दैट यू हैव नॉट डन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। आप अपनी स्कूल की चीजें, अपनी कॉलेज की चीजें या कोई भी डिफरेंट चीजें जिसमें आपने इनिशिएटिव रिलेटेड वर्क किया है वो मेंशन करेंगे। अगर आपने अपने स्कूल में कभी भी कोई लीडरशिप जैसा कोई प्रोग्राम हैंडल किया है आप उसके बारे में मेंशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी भी कोई ओलंपियाड होस्ट किया है या आपके स्कूल में कोई भी फंक्शन होता था, सो यू वर द हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, क्योंकि स्कूल्स में डिपार्टमेंट होते हैं। बट इफ योर स्कूलिंग वाज वेरी ओल्ड स्कूल जहाँ पे ये सब चीजों की एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, नॉट अ प्रॉब्लम। आप अपनी कॉलेज के बारे में बताएंगे, आप अपनी थीसिस को मेंशन करेंगे कि आपने कॉलेज में क्या वर्क किया है, क्या को करिकुलम एक्टिविटीज आपने की है, कौन कौन सी चीजों में आपने पार्टिसिपेट किया है, कौन कौन से फंक्शंस या कौन कौन सी ऐसे इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स थे जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया है। ट्रस्ट मी, जब आप इस बारे में सोचेंगे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी कि अरे हाँ, मैंने तो अपने कॉलेज में ये भी किया था या मैंने अपने कॉलेज में इस चीज को होस्ट किया था। You may find it small. To me as a recruiter it is not small. Why? I give you a very solid reason. आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं, बट आपने जहाँ से एजुकेशन लिया है और आप किस टाइप की पर्सनालिटी है, अगर आप ये सब मेंशन करते हैं तो मुझे पता चलता है that this person has leadership qualities। क्योंकि आपके कॉलेज में हर एक इंसान ने तो को करिकुलम एक्टिविटीज में या जितने भी फंक्शंस हुए होंगे उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, करेक्ट? या हर किसी के पास इतनी गट्स नहीं होते कि वो उन चीजों को ऑर्गेनाइज कर सके, उस चीज की ओनरशिप ले सके। सो इफ यू हैव डन इट एंड इफ यू मेंशन इट ऑन योर सीवी एज अ फ्रेशर कैंडिडेट, this gives me a direction. This helps me understand as a recruiter कि नहीं, ये बंदा फ्रेशर है लेकिन इसने ये सब किया है। This person has the potential to grow. ये बंदा आगे फ्यूचर में भी करेगा। क्योंकि आप कॉलेज में पढ़ने तो हर कोई जा रहा है, बट आपने पढ़ाई के अलावा ये सब भी किया है। That makes your character, that defines your character, that defines your personality. So mention it on your CV. अगर आप सोचने निकलेंगे तो मिल जाएगा। Now a pro tip. अगर ऐसा कुछ है कि आपने कुछ भी नहीं किया है तो वैसा ऐसा होगा नहीं, आई एम श्योर, बट विद लिटिल बिट ऑफ ट्वीकिंग ऑफ वर्ड्स, लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशनल जिंक्स, you can definitely incorporate it in your CV. Okay, and now we will go back to the second pointer, that was a summary. अब इस पॉइंट तक आते हुए आपने अपना CV पूरा डिजाइन कर लिया, आपने अपना नाम, आपने अपना कंपनी का डिटेल्स, कंपनी के बारे में, अचीवमेंट्स, एवरीथिंग यू हैव मेंशन्ड। अब इन्हीं सब चीजों का सार, इन्हीं सब चीजों की समरी आप बनाएंगे और उसको अपने CV के जस्ट नाम के नीचे समरी पॉइंटर में लिख देंगे। दिस विल इंक्लूड योर करियर गोल,
This will include what you have done, what type of individual you are, what type of personality you bring, and what is there that you want to explore in the near future. Now, why these points are very very important? समरी से मुझे ये पता चल जाएगा कि आपने पास्ट में क्या किया है, आपकी समरी से मुझे ये पता चल जाएगा कि आपने वहां पर क्या क्या चीजें अक्वायर की हैं अपने प्रीवियस वर्क में या प्रीवियस एज अ फ्रेशर ऑल्सो, आपने अपनी अब तक की लाइफ में ऐसा क्या क्या स्किल्स अक्वायर किए हैं, what resources or what skill set you have gained with your career goal and perspective, that what is your direction. आप एक directionless person है, ये आपको पता है कि आपको आने वाले 5 साल में क्या करना है. If you mention it like this, it gives me a broad prospect. It gives me the ability to analyze your candidature on a broad horizon. So summary, after you are done making your CV, now some pro tips which no one is going to tell you. And अगर आपको ऑलरेडी अपना CV बनाना आता है तो आप डेफिनेटली यहाँ से ये वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं टू रियलाइज कि शायद अगर आपने ऐसी कोई मिस्टेक्स की हैं तो आप उनको फ्यूचर में ना करें. सबसे पहली चीज, अपना CV हमेशा PDF फॉर्म में भेजें. नाउ इसके लिए मेरे पास कोई सॉलिड वो नहीं है कि आपको PDF में क्यों भेजना चाहिए, बट ऐसा मेरे साथ हो चुका है कि कितनी बार काफी सारे कैंडिडेट्स ने मुझे किसी और फॉर्म में अपना CV भेजा है इन दी MS Word और समथिंग, एंड व्हेन आई ओपनड इट इन माय डेस्कटॉप इट वाज कंप्लीट डिजास्टर. क्योंकि आपके पीसी के अंदर ऐसा हो सकता है कि वो परफेक्टली अलाइंड है, बट मेरे पीसी के अंदर ड्यू टू सम रीजन वो ऊपर नीचे हो सकता है, ड्यू टू स्केलिंग इशू और ड्यू टू सम अदर इश्यूज. सो इट इज एडवाइज्ड कि आप उसको PDF फॉर्म में भेजें, बिकॉज अगर मुझे आपकी PDF को एडिट भी करना है तो मुझे पहले उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा. आई कैन नॉट, इट कैन नॉट बी एडिटेड until or unless I convert it into an editable version of a PDF. So avoid sending your CVs in any other format. Preferably send it always in PDF. Second thing, avoid any sort of grammar mistakes or punctuation mistakes. One mistake and your CV is left swiped. Trust me. ये मैं आपको ऐसी हवा वाली बोल रही हूँ. आप सोचिए आपने अपना जितना मर्जी अच्छा CV क्यों ना बनाया हो, बट इफ योर CV इज a problem, like there is a grammar a mistake, a grammar problem, then it gives any recruiter for that matter a very bad impression of yours. And make sure all the dates that you are also mentioning are correct. मैं आपको एक अपना पर्सनल एग्जाम्पल देना चाहती हूँ इस केस के अंदर. once what happened that कहीं पे जॉब इंटरव्यू था और मुझे मेरा CV भेजना था, एंड मैंने नोटिस नहीं किया दैट मैंने अपना CV बहुत जल्दीबाजी में उसको कुछ तो एडिट किया था, एंड आई मेड एन एरर विद द डेट्स. सो बेसिकली मैंने डेट में ये गलती कर दी थी कि जो एग्जैक्ट डेट मुझे लिखनी थी कि मैंने इस दिन से कंपनी ज्वाइन की है, मैंने उस डेट को थोड़ा सा गलत लिख दिया था. आई थिंक 1 महीने का ऊपर नीचे हो गया था, वो कुछ तो उसमें प्रॉब्लम हो गई थी. एंड नाउ व्हाट हैपेंड व्हेन द रिक्रूटर कॉल्ड मी आफ्टर इंटरव्यू वाज डन, एवरीथिंग वाज डन, द रिक्रूटर कॉल्ड मी टू टेल मी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए, एंड आई सेंट माय डॉक्यूमेंट्स. द रिक्रूटर कॉल्ड मी, द HR कॉल्ड मी वंस अगेन, एंड द HR confirmed with me that आपने ये डेट आपके ऑफर पे तो ये लिखा है और आपने CV पे ये लिखा है. एंड देन आई वेंट बैक एंड आई चेक्ड इमीडिएटली एंड आई अपोलोजाइज टू हर दैट आई एम सॉरी, इट वाज माय प्रॉब्लम. मतलब मुझसे गलती से जल्दीबाजी में मैंने ना गलत डेट लिख दिया है, बट दिस इज द करेक्ट डेट व्हिच इज मेंशन ऑन द डॉक्यूमेंट. द CV one is incorrect one. And she said, okay, I understand, I'll get back to you on that. And then she disconnected the call, and I was like, okay, it's all fine, right? Like, there is no problem in that. Trust me, it turned into a disaster. I received a call back. No, I did not receive a call. I remember I received an email that we will not be able to proceed further with your candidature. I called back the HR again to confirm with her that what exactly happened. I shared my documents and everything. And now, what happened now, at least? So, the team confirmed me that it is considered as what word they used, I'm not sure, but they said कि आपने information गलत provide किया, जिस वजह से our company policy doesn't align with it. We consider it as a complete problem and there is no room for correction over there, because जब हम ये चीज अपने पोर्टल में डाल रहे हैं तो पोर्टल is only not accepting it कि आपने जो CV पे डेट डाला है वो गलत है और जो डॉक्यूमेंट्स पे है वो डिफरेंट डेट है. ड्यू टू दैट प्रॉब्लम उस वेरिफिकेशन प्रोसेस के अंदर हमारा सिस्टम ही इस तरीके से डिजाइंड है कि वो आपके उसको रिजेक्ट कर दे रहा है. नाउ I told them that can't I just resend my CV and give you an updated copy of my CV? They said there is no way that they can do it, is because
there is some cooling period of 6 months once again, and then you have to re-upload your CV, your new version of CV. If we do it again, the system will blacklist your candidature, so we cannot do it. That was the impact I faced. Just मेरी छोटी सी mistake due to me being busy, and I just ended up sending my CV like that. I lost the job. ये मेरा खुद का personal life example है जो मैंने face किया था due to this mistake, and I was cursing myself using all the bad words possible कि क्या यार ये क्यों किया तुमने. But from my mistake I am here guiding you. You don't make that mistake. Please check your CV. आंखें खोल के, आंख नाक कान सारे सेंसेस खुले रख के कि क्या लिख रहे हो आप अपने CV पे. Okay. Next thing. Do not use monotonous or boring words on your CV. Use action words. अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि what are action words. आप मेरा एक और वीडियो देख सकते हैं जिसको मैं साइड में टैग कर दूंगी. आप उस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं what mistakes to avoid in a interview. वो ही सेम मिस्टेक्स आप रेफरेंस लेके अपने सीवी पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. बट मेंशन एक्शन वर्ड्स. एक्शन वर्ड्स ये दिखाते हैं कि आपने क्या क्या काम किया है, नॉट दी मोनोटोनस वर्ड्स. ओके. फोर्थ थिंग, जो भी आप अपने सीवी पर मेंशन करेंगे, यू शुड हैव अ रियल लाइफ एग्जांपल टू बैक इट अप. व्हाट आई मीन बाय दैट इज, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देती हूँ. एआई का जमाना है. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपना सीवी जब बना रहे हैं तब आप एआई का इस्तेमाल ना करें. आप एआई का भर भर के इस्तेमाल करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फॉर दैट मैटर. लेकिन आउटशाइन करने के लिए या ऐसा दिखने के लिए कि आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत बड़े थुर्रम कहाँ हैं कहीं के, प्लीज ऐसे शब्दों का या ऐसे सेंटेंसेस का इस्तेमाल ना करें जिसके बारे में आप ही को ना पता हो. नाउ I have another example for it. My life example once again. I was in an interview and okay, before this मैंने अपने CV पर ये लिखा था that I am a German language student till A2 level. जिनको नहीं पता मैं बहुत क्विकली बता देती हूँ. आप जब भी कोई लैंग्वेज स्टडी करते हैं, इवन फॉर दैट मैटर अगर आप अपनी हमारी हिंदी भाषा को भी स्टडी करेंगे प्रोफेशनली, तो उनके लेवल्स होते हैं. दैट लेवल डिफाइंस योर प्रोफिशिएंसी एंड कमांड इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज. सो दोज आर कॉल्ड एज बैंड इन some language courses, so it's called as level. So I mentioned it on my CV that I know German till A2 level. Now I'm in that interview. The recruiter is in front of me, and that recruiter asks me, "You have mentioned that you are a German student and you know German till A2 level. So is that correct?" So I said, "Yes, that is correct. I know till B1 level, but unfortunately, due to some certification reasons, if at all I would be asked to submit till B1, there will be some discrepancy. So to be on safer side, I mention it till A2, but I reveal it that it's B1 level." Then they end up the recruiter told me, "So whatever I am going to ask you going forward, you have to answer me back in German." Okay. So that was a moment of pause for me. मैं literally एक second के लिए थोड़ा सा ऐसे हो गई थी कि what? So yes, you heard me right. जो भी मैं सवाल आपसे पूछूंगा आपको उसका जवाब आप मुझे जर्मन में देना होगा. So I said okay. So the interview went on for 2 minutes and he kept on asking me about the things and I ended up replying in German. जो भी टूटी फूटी जर्मन मुझे आती थी उस टाइम तक, मतलब उस टाइम पर तो अच्छे से आती थी, अभी टूटी फूटी हो गई है. So the recruiter was happy. Then the recruiter asked me a question out of nowhere. The question, I still remember that question. That FIFA World Cup का कुछ question था. That who won FIFA World Cup in that particular year? I don't even remember the year now. It's long time back. So I told the recruiter that I don't know. But like I was honest. I told them that I really don't know because I'm not that much of a sports person. So I don't know that. But I am good with these things. They said okay. And by the end of the interview, I asked them for the feedback or something. So they said, I don't have any negative feedback for you, but I want to tell you something that I'm really impressed by one thing of yours. That is that whatever you have mentioned on your CV, you own up to it. Now what I mean by that is, रिक्रूटर ने मुझसे बोला था कि मैं अपने आगे का इंटरव्यू जर्मन में दूं. मैंने सिर्फ वो स्किल दिखाने के लिए सीवी पर नहीं लिखी थी, मुझे वो चीज आती थी, मैंने इसलिए लिखी थी. एंड आई वाज एबल टू प्रूव इट इन द इंटरव्यू बिकॉज मे बी रिक्रूटर को शक हो या रिक्रूटर को ऐसा लग रहा हो कि मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही हूँ ये दिखा के कि मुझे लैंग्वेज आती है. I don't know the recruiter's intention behind that, but he told me that I really liked the fact about you कि आपने जो भी अपने CV पर लिखा है, you mean it and you own up to it. Another example, it was related to numbers क्योंकि जैसा CV का template मैं आपको बता रही हूँ वैसा ही मैंने अपना CV का भी template बनाया था. And I mentioned all the numbers beautifully that derive the
sales through this, contributed this, handled these many regions and everything, month on month, quarterly results and everything. So I mentioned everything like that with the good numbers and everything. Now, ये इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऊपर नीचे हुई थी. How I'll tell you. अब डरना मत ये चीज़ समझ करके. Just because I made my CV too much focused towards my achievements for that particular job role only, recruiter was impressed by that, but रिक्रूटर रियली वांटेड टू टेस्ट कि मैंने जो लिखा है वहां पे क्या वो करेक्ट है या गलत है. सो मेरा इंटरव्यू में बैठे बैठे मैथमेटिक्स का टेस्ट हो गया, बिकॉज मैंने लिखा था कि दिस पर्टिकुलर थिंग आई कॉन्ट्रीब्यूटेड इट एंड मेड इट 2. सो देयर वर मल्टीपल नंबर्स आई प्रोवाइडेड कि मेरे वजह से ये ऐसा हुआ, मेरे से इतना ग्रोथ हुआ, इतने परसेंटेज पे ग्रोथ हुआ, इतना मंथ ऑन मंथ सेल्स था. सो द परसेंटेज वाज करेक्ट, इट वाज ऑल करेक्ट, बट रिक्रूटर वांटेड टू नो कि मैंने वो सब जो लिखा है क्या वो मुझे पता ही नहीं पता है. तो मैंने उनको नंबर्स दिया क्योंकि मैंने सिर्फ परसेंटेज लिखे हुए थे दैट इट कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ 7%, देन 10%, देन समथिंग लाइक दैट. सो रिक्रूटर आस्क्ड मी तो आपने उस मंथ में कितना अचीव किया था टारगेट, एंड आई टोल्ड देम दिस नंबर लाइक एन एस्टिमेट. देन ही सेड अच्छा, फिर नेक्स्ट मंथ, एंड देन द कन्वर्सेशन केप्ट गोइंग एंड आई फाउंड इट वेरी नॉर्मल. आफ्टर दैट व्हेन ही incorporated the data for almost 2 quarters, he asked me कि आपने लिखा है कि आपने इस क्वार्टर से इस क्वार्टर तक इतना इतना नंबर किया है और आपने अपने CV पे लिखा है that it is 10%. Can you add up the math for me? And for a second, once again, I was taken back कि ये क्या हो गया. But then I told him that yes, I can add up the math for you. I can help you explain this particular math. So if we count these numbers and this number, so it is coming down to an aggregate of 9.8 only, which is almost 10%, and I have wrote it correctly. That was one sigh of relief. But the recruiter didn't stop there. He was like, okay, so what was this, what was this, what was the conversion rate and everything. Like, he was asking me all the numerical based questions, and I backed all those numbers I'm sorry, whichever I mention on my CV with real life examples. Now, why I am emphasizing on this particular thing is because अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो 110% श्योर कि आपके साथ भी होता है. अगर आप किसी ऐसे रिक्रूटर को मिलते हैं जो आपकी नॉलेज चेक करना चाहता है कि आपने अपने CV पे जो लिखा है क्या आप जानते भी हैं आपने क्या लिखा है, आपने किसी और से CV बनवा लिया है. बिकॉज इट्स वेरी इजी, आज की डेट में आप किसी को भी पैसे दे सकते हो और आप अपना बहुत अच्छा CV बनवा सकते हो जॉब पाने के लिए. या आजकल तो लोगों ने बल्कि बिजनेस खोला हुआ, लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर प्रमोटिंग कि आप पैसे दे दो उनको और वो लोग आपका बहुत ही अच्छा CV बना के दे देंगे. पर आपको अगर पता ही नहीं है कि आपने अपने CV पे लिखा क्या है, सो हाउ डज इट मेक सेंस टू यू. सो आप अपने CV पर जो भी लिखते हैं वो चीज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए. इवन इफ इट इज अ वर्ड, यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड. इट शुड नॉट बी लाइक कि नहीं मुझे मतलब ही नहीं पता उसका. वहीं पे आपका सारा गेम चौपट हो जाएगा क्योंकि रिक्रूटर को पता चल जाएगा इसने या तो AI से अपना CV बनवाया है या किसी और से अपना CV बनाया है, लेकिन इस इंसान को ये चीज नहीं पता है. बहुत सारे लोग अपने CV पे लिखते हैं आई एम अ वेरी कीन लर्नर, तो मैंने उस कीन को हटा करके लिख दिया था आई एम अ वेरी मेटिकुलस पर्सन. जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ, मेटिकुलस इज वेरी डिटेल ओरिएंटेड पर्सन. सो मैंने लिखा था आई एम वेरी मेटिकुलस पर्सन और समथिंग लाइक दैट आई मेंशन, आई एम नॉट श्योर. सो द रिक्रूटर आस्क्ड मी कैन यू एक्सप्लेन मी हाउ आर यू अ मेटिकुलस पर्सन और हाउ वेल आर यू at managing something, he asked me. So I told him that yes, this was an error and I did this and I did this. I'm sorry this ये पोर्शन थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं पर्पसली इसको थोड़ा लंबा कर रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस समझा सकूं. that it is very important. Please do not make such mistakes. आप जो भी अपने CV पे लिखते हो, जो भी वर्ड आपने लिखा है उसका मतलब आपको पता होना चाहिए, ताकि रिक्रूटर ने अगर आपसे सडनली घुमा करके भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया, आपको उसका मतलब पता होना चाहिए और आप उस चीज को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे. ठीक है. अब समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. इस चीज के लिए मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं कि मैम हम रेवोल्यूट में कैसे सिलेक्ट हो जाएं या हम किसी और कंपनी में अपना CV कैसे शॉर्टलिस्ट करा लें. देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा बट इट्स वेरी मच पॉसिबल. इट्स अ ग्रेट एडवाइस, ट्रस्ट मी ऑन दैट. मैं भी इस एडवाइस को फॉलो करती हूँ. मैंने आगे ये एडवाइस बहुत लोगों को फॉलो दी है मतलब, और उन लोगों ने भी इस चीज को फॉलो किया है, रिजल्ट्स देखे हैं. आपको भी दे रही हूँ, आप भी फॉलो करना और रिजल्ट जब मिल जाए तो मुझे आगे कमेंट में बता देना. मेक मल्टीपल CVs फॉर डिफरेंट जॉब रोल्स. नाउ अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसका एक्सपीरियंस डिफरेंट चीजों में है और आपका एक्सपीरियंस एक चीज में है लेकिन अब आप अपनी डोमेन शिफ्ट करना चाहते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर सैलरी और एनीथिंग, तो आप अपनी फॉर एग्जाम्पल आप एक सेल्स की डोमेन में काम कर रहे हैं बट अब आप कस्टमर सर्विस में जाना चाहते हैं, तो आप सेल्स का एक्सपीरियंस लेके कस्टमर सर्विस में जाओगे तो मे बी शायद रिक्रूटर्स प्ले ऑन योर पैकेज एंड ऑल. तो आपको एक्सपीरियंस भी वही दिखाना है उसी कंपनी का बट इन अ डिफरेंट वे.
वे, तो आप उसको कस्टमर सर्विस पे कैसे कन्वर्ट करोगे? हियर इज समथिंग दैट इज गोइंग टू वंस अगेन गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू इज मेक मल्टीपल सीवीज। अगर आप सेल्स के लिए बना रहे हैं तो सेल्स के लिए रखिए। आप इंजीनियर बैकग्राउंड से हैं और इंजीनियरिंग में भी बहुत सारी डोमेन्स होती हैं, तो अगर आप डिफरेंट डोमेन्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सो मेक 2 सेपरेट सीवीज फॉर दैट डोमेन। अगर आप कस्टमर सर्विस में जाना चाहते हैं तो कस्टमर सर्विस का भी सीवी बना के रखिए। आप ऑपरेशंस में जाना चाहते हैं तो आप ऑपरेशंस का भी सीवी बना के रखिए। अगर आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल लिया, अगर आप इंजीनियर हैं एक पर्टिकुलर फील्ड में और आपको दूसरी चीज भी आती है और आप उसमें शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप 2 सीवीज बनाइए या 3 सीवीज बनाइए ताकि आप रेलेवेंट सीवी रेलेवेंट जॉब प्रोफाइल के लिए भेज सके। इससे बेनिफिट ये होगा, आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज का जो डोर है वो बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर ओपन कर लेंगे। आप सेल्स के सीवी से शायद कस्टमर सर्विस में ना जा पाए बिकॉज बहुत सारी कंपनीज एआई का यूज करती हैं आपके सीवीज को सिलेक्ट करने के लिए, और आप कस्टमर सर्विस के सीवी से शायद सेल्स में ना जा पाए, या फिर आप ऑपरेशंस के सीवी से कस्टमर सर्विस में ना आ पाए, या आप कस्टमर्स इन सेल्स के सीवी से ऑपरेशंस में ना आ पाए। सो मेक एज मेनी सीवीज एज यू वांट फॉर योरसेल्फ पर्टेनिंग टू दोज डोमेन्स। अब आपने जॉब देखी कि अच्छा ये जॉब सेल की है, तो आपने सेल वाले उसमें सेल का सीवी डाल दिया। आपने देखा कि नहीं जॉब जो है वो कस्टमर सर्विस की है, तो आपने कस्टमर सर्विस वाला जो सीवी है वो कस्टमर सर्विस वाली जॉब रोल के लिए डाला। आपको लगता है कि नहीं ये जॉब जो है ये ऑपरेशंस कम कस्टमर सर्विस में है, की अकाउंट मैनेजमेंट में है, तो उसमें आपने उस टाइप का सीवी डाल दिया। नाउ आई कैन नॉट आस्क यू टू कीप एडिटिंग योर सीवी ऑल द टाइम, बट एटलीस्ट मेक योर सीवी वंस। अब एक और प्रो टिप मैं आपको दे देती हूँ यहाँ पे। आपने क्या करना है, आपने अपने जितने भी आपने जॉब्स डाली हैं, मतलब इफ यू आर एन एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट फॉर दैट मैटर, तो आप सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में लिख सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहते मल्टीपल सीवीज ड्यू टू योर ओन रीजंस, तो आपका जो सबसे टॉप मतलब जिसमें आप चाहते हो सिलेक्ट होना, आप सबसे टॉप पर उस जॉब के अंदर वो लिख दीजिए कि आपने सेल किया या कस्टमर सर्विस किया। सेकेंड जॉब के अंदर आप सेल्स लिख दीजिए। थर्ड जॉब के अंदर जो मतलब गोइंग इन दी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप उसको डिफरेंट कर दीजिए कि मैंने फिर ऑपरेशंस किया। दिस इज समथिंग दैट डजंट गो वेरी वेल बिकॉज बहुत ज्यादा जिंक्स हो जाता है, बट ओनली फॉर द पीपल जो 3-4 सीवीज नहीं बना सकते। मैंने अपने 3 सीवीज बना रखे, 3 से 4 सीवीज फॉर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। सो प्लीज मेक श्योर ट्राई दिस, यू विल डेफिनेटली सी द डिफरेंस। Now the bonus part. Well, अब मेरे लिए ये डिफिकल्ट हो जाएगा, but here we go. Once again, I am going to help any one of you make your professional CV. Like, I will give you the idea, I'll help you build your CV, I'll give you all the information possible from my side with my support to one lucky person. How I'm gonna select that I'm telling you. You need to subscribe, you need to follow, you need to drop down CV or resume or help, anything like whatever you want. जितने भी लोग CV, resume और help लिख देंगे, इन तीनों में से कोई भी एक शब्द, मैं वेट करूंगी 50 to 100 कमेंट्स का। Now, why I am giving you this number as 50 to 100 is because अगर बहुत जल्दी 50 का कमेंट हो जाएगा तो मैं 50 चूज कर लूंगी, और अगर क्योंकि 100 होने में अगर टाइम लगता है तो मैं 50 चूज कर लूंगी, और अगर बहुत ही जल्दी 100 कमेंट्स हो जाते हैं तो मैं 100 पिक कर लूंगी, एंड आई विल बी पिकिंग द रैंडम पर्सन and would be helping that particular person make their professional CV to help them land their dream job. And you will be connecting with me over a Google Meet or a Zoom meeting, and you will have my 1 hour of time, and I'll be there to support you to understand your thing and how you want, like what are your career perspectives and goals, and I will be helping you make your perfect CV. So looking forward for it. I'll see who's the lucky winner and who really wants my help. And if you are one of them, then don't forget to subscribe. But make sure it is only for the person who is subscribing to the channel. So if you're not subscribed and if you mention comment like CV or help, I will not pick your name because I can really check who all have subscribed to my channel. So I'll be only picking the one who have subscribed to my channel. So that's the provided condition, terms and conditions, rules apply. But rest assured, I'll try my best to help you as much as I can, and as many of you as I can. Video थोड़ा सा लंबा हो गया, but I'm really sorry for it. But it was needed. And अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, then I'm sure आपको ये वीडियो इसीलिए मिला होगा because you might be in hunt of job. You might be looking for jobs or job updates or such kind of content help or maybe markets, financial help or anything. So this is the right platform for you because I cover real-time job updates,
I cover interview tips, I cover stock market, I cover IPOs, I cover current affairs, and like a lot of things. So stay tuned and I'll see you in the next video. Until then, happy learning. Take care. I hope you find this particular video helpful. Happy learning. Bye. All the best.